how things changed at Paytm? How was the conversation with Vijay? थोड़ा हार्ड कन्वर्सेशंस था बिकॉज Today, our guest is Amit Lakhotia, founder and CEO of Park Plus. I come from a small village in Churu district of Rajasthan. From building corporate travel business at MakeMyTrip to scaling Paytm wallet business, I had spent a large amount of time at Paytm building that business. what was your salary? How was the first meeting with Vijay Shekhar Sharma? तो विजय के साथ मतलब If you have to define MakeMyTrip, मेक माई ट्रिप का स्टॉक 2012 में $40 था. अमित की जर्नी काफ़ी इंटरेस्टिंग रही है. वी वर नॉट फ्रॉम अ वेरी साउंड फाइनेंशियल बैकग्राउंड. मैंने बाद में कभी पूछा दीप से, मैं जब आपको बोलता था कि मैं 3-4 साल बाद अपना करना चाहूंगा तो आपको ये नहीं होता था कि ये बंदा तो छोड़ देगा? तो दीप ने कहा पागल, तू तो मेरे को 3-4 साल की गारंटी दे रहा था. पार्क प्लस के लिए आपका ट्रिगर पॉइंट क्या था? Welcome to a new episode of Not Just Business. Today, our guest is Amit Lakhotia, founder and CEO of Park Plus. He started Park Plus just before COVID, a space which most of people considered broken and boring, parking. आज Park Plus क्वाइटली इंडियन सिटीज़ के अक्रॉस एक कार सुपर ऐप बिल्ड कर रही है. इस कॉन्वर्सेशन में हम बिजनेस की ही बातें नहीं बल्कि अमित के अर्ली डेज, चाइल्डहुड मेमोरीज, इनिशियल स्ट्रगल एंड उन मेंटर्स की भी चर्चा करेंगे जिन्होंने इनकी जर्नी को शेप किया है. लेट्स गेट स्टार्टेड. वेलकम अमित. थैंक यू सर. थैंक यू. So we are talking early phase in your life. So you moved to Delhi when you were around 10. So how was the shift? Because you were coming from a humble background in Rajasthan to a top city in India. So how was the transition? Actually, I come from a small village in Churu district of Rajasthan. Churu comes in the news twice a year. One in June for highest temperature in India, and second in December for lowest temperature. Oh, So the temperature varies between plus 50 degrees to 0 degree in the whole year. so I think weather was not a problem because Delhi also has the coldest and So at that point of time, I think today information is spreading everywhere. Even people with the internet and everything, people in the remote towns also know what's happening all around. Like we sitting here would know what is happening in US and all that kind of stuff. Exposure today is very high. That time there was nearly no exposure. And also like some of the things which almost all of us, the small town guys or small village guys face or would have faced, is like exposure to English as a language, spoken language. So that is a point of time when I came there. We have just started learning A for Apple. And when I joined here, the first thing I was told was write a letter to editor. So for me, letter was LETTER. yeah. That is where we started with, and obviously nobody in family was fairly educated. Father was 12th passed. Similarly, all that kind of stuff. And that education also happened because आप मास्टर जी के यहाँ घर पे दूध दे देते हैं एग्जाम के दिनों में, तो आप पास हो जाते थे. सर, राजस्थान से दिल्ली शिफ्ट होने का रीजन क्या था? Primarily migration. Okay. Father was trying to build a business in Delhi and Ajmeri Gate side, the electrical hardware and everything. Okay. And then we decided to move out here. तो जब आप यहाँ पे आए तो आप 10 साल के 8-9 साल टाइप होंगे. तो फिर जो शिफ्ट हुआ था फिर लगे वहाँ पे ABCD सिखाते थे 4th में और यहाँ पे सीधा लेटर सिखाते थे. तो क्या चैलेंजेस आए आपको कि यहाँ पे एकदम से पूरा शिफ्ट हो गया? I think the adoption was a big challenge. Because at that point of time, I used to speak in Marwadi, not even Hindi. So we were like a bit of amusement in the school as well, where most of the kids were speaking in English. So that was one of the biggest challenges, which was adoption, mixing in the kids, etc. The second part is also in terms of the culture and everything, because here kids were spending far more than what we had access there. Kids had far more exposure as compared to what we had access there. So transitioning was a big challenge. It remained a challenge for I think first 2-3 years. And after 2-3 years, then the mix-up started happening well. तो आप जब दिल्ली शिफ्ट हुए, there was a cultural, societal shift. So bully भी हुए आप कुछ? हाँ, काफ़ी हुआ. actually
टीचर लेवल पे भी हुआ और बच्चों लेवल पे भी हुआ। अब आपको कुछ समझ नहीं आता क्योंकि टीचर इंग्लिश में बात कर रही है तो आप जवाब नहीं देते हो टीचर को। टीचर कहती है अच्छा मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ और आप जवाब भी नहीं दे रहे हो, तो जाके बेंच पे खड़े हो जाओ। तो मतलब आई थिंक फर्स्ट ईयर में तो मैं काफ़ी टाइम बेंच पे खड़ा हुआ हूँ जस्ट इसलिए कि मैं जवाब नहीं दे रहा हूँ। मैं जवाब क्यों नहीं दे रहा हूँ? क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा टीचर क्या बोल रही है। अच्छा, आजकल के बच्चों में देखा गया है कि बुली करने पे दे आल्सो गो फॉर एक्सट्रीम स्टेप्स एंड ऑल। सो आपने कैसे डील किया? मतलब नहीं उस टाइम तो यार वो बड़ा क्लियर था, सर्वाइवल की स्टोरी थी। और उस टाइम मतलब बच्चे इतने सेंसिटिव नहीं होते थे। मतलब उस टाइम पेरेंट्स बच्चों को पीट दे, टीचर बच्चों को पीट दे, कॉमन है। सो व्हाट हैज चेंज्ड उस वक्त और इस वक्त में? आपके बच्चे अभी स्कूल जाते होंगे तो आपको क्या लगता है कि आई थिंक ओवरऑल सोसाइटी लेवल पे वो जो एक है कि बच्चों को बुली नहीं करना चाहिए, बच्चों पे शाउट नहीं करना चाहिए, बच्चों को बैठ के समझाना चाहिए। Like there's a fairly large variation that has happened. Also, what has happened was earlier every parent would have 3, 4, 5 kids. Now every parent is having only one kid. तो वो फिर how much attention a single kid is getting and how much benefits, exposure, classes each kid is having is very very different from what it was used to happen there. सर उस टाइम जब यहाँ पे आए थे आपके घर का माहौल कैसा था? कि मतलब काफ़ी स्ट्रिक्ट थे, आप कैसे थे? आप मतलब ज़्यादा मोर कॉन्शियस थे या फिर डरे हुए थे या फिर कैसे थे? तो हम तो जॉइंट फैमिली में थे यहाँ पे आए तो मतलब वो 3 कमरे के घर में आई थिंक 15-18 लोग रहते थे यहाँ पे जब पहाड़गंज आए थे हम लोग शुरू में। तो वैसा वाला सीन था बट मतलब जॉइंट फैमिली थी तो मतलब चाचा के बच्चे सब साथ में थे तो मतलब इट यूज्ड टू बी गुड फन। मतलब साल में आप 3 महीने पतंग उड़ा रहे हो छत पे बैठ के खड़े होके, all those kind. So we grew up. I think this is one of the other things. Like वो sensitivity इसलिए भी थी कि बच्चे आपस में खेल भी लेंगे, लड़ भी लेंगे, झगड़ भी लेंगे, करते रहेंगे। आज वो इंडिविजुअल किड है, he doesn't even know how to work with other kids, how to share with other kids, and so on and so forth. interaction is limited Interaction is fairly limited, and interaction is a lot more digital in nature. वहाँ पे तो सब कुछ फिजिकल था। आप या तो रोड पे क्रिकेट खेल रहे हो या छत पे पतंग उड़ा रहे हो। Those conversations are very very different from what you see today. सर आपके भाई बहन कितने थे? मेरे 2 छोटे भाई हैं एंड प्लस जैसे मैंने बोला चाचा के लड़के लड़कियां, ताऊजी के लड़के वगैरह सब था। So you were the eldest in the family? हाँ जी, I was the eldest. So eldest son का खास करके you moved from a small village to Delhi. There I believe there was a huge pressure on you to perform better in life. हाँ, आई थिंक वो इंडियन फैमिलीज में जो बड़े किड की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटेड या इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट सब होती है। तो आपने सीरियस कब लेना, मतलब फैमिली को देख के कब सीरियसली ये सब चीज़ सोचना शुरू किया? किस स्टैंडर्ड में हो गया आप? 5th स्टैंडर्ड में। तो 5th में क्या हुआ जब मैं यहाँ आया तो मतलब वी वर नॉट फ्रॉम अ वेरी साउंड फाइनेंशियल बैकग्राउंड। तो हुआ क्या कि जब स्कूल में एडमिशन कराने गए तो टीचर ने बोला इस बच्चे को तो इनको तो कुछ आता नहीं है तो इनको कैसे लें। तो पापा ने ऐसे ही मजाक में चैलेंज कर दिया कि नहीं मेरा बच्चा 1 साल में फर्स्ट आएगा। अच्छा। तो टीचर ने बोला, प्रिंसिपल ने बोला कि अच्छा अगर ये फर्स्ट आएगा तो मैं इसकी ट्यूशन फी या तीनों भाइयों की ट्यूशन फी वेव ऑफ कर दूंगी। पापा घर आए, बोला बहुत सिंपल कि भाई घर में इतने पैसे तो है नहीं कि हम तीनों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा दें, तो तरीका यही है फर्स्ट आ जाओ तो ट्यूशन फी वेव ऑफ हो जाएगी, नहीं तो फिर देख लो भाई क्या होना है। तो वो शुरू से ही वो हो गया कि भाई फर्स्ट तो आना पड़ेगा, नहीं आएंगे तो पढ़ाई कंटिन्यू नहीं। तो आप स्टडीज में शुरू से अच्छे थे, मतलब चाहे वो प्रेशर मान लो, चाहे वो फाइनेंशियल कंडीशन मान लो, चाहे वो खुद से भी हो। मेरे को लगता है कि जो रिस्क टेकिंग एपेटाइट है दैट इज इन द डीएनए बिकॉज योर फादर टोल्ड प्रिंसिपल दैट ही विल कम फर्स्ट, सो इट वाज अ रिस्क, राइट? हाँ, मतलब हमें तो कभी समझ भी नहीं आई कि कैसे बोल दिया उन्होंने, पर उन्होंने भी ये बोला कि भाई नहीं के बिना तो तुम वैसे भी बाहर ही थे, तो एटलीस्ट एक अपॉर्चुनिटी तो है। एंड यू टॉप द क्लास? हाँ, फर्स्ट 5th में 3rd आया था एंड 6th से फर्स्ट आया था। सो मतलब शुरू से ही इंजीनियरिंग करने का? नहीं, एक्चुअली ट्रांजिशन बहुत इंटरेस्टिंग था कि 10th के बाद मैंने कॉमर्स ली। ओह वाओ। मैं 2 महीने कॉमर्स क्लास में बैठा, फिर देखा कि सारे टीचर्स कह रहे हैं यार आपको साइंस लेनी चाहिए। व्हाई यू चोज कॉमर्स फर्स्ट? मतलब मारवाड़ी के घरों में होता ना सीए करना है, तो उस टाइम वैसा था कि चलो सीए करना है। देन यू सॉ ऑल पीपल अराउंड यू डूइंग, मतलब जो आपके पीयर्स थे 10th में जो वो सारे साइंस लेके बैठे हुए हैं। तो आपने यू चेंज स्ट्रीम आफ्टर 2 months? हाँ, 1 month 1.5 month चेंज किया एंड देन वेंट टू दिस थिंग साइंस स्ट्रीम। एंड साइंस में काफ़ी मतलब उस टाइम आईटी का मेरे को ज़्यादा नहीं पता था, तो एक्चुअली दैट इज़ वन ऑफ द प्रॉब्लम विद द बैकग्राउंड
कि आपको नहीं पता था तो आपने नहीं किया ट्राई, पढ़े ही नहीं आप 11th-12th में जो IIT के लिए पढ़ना था. So तो दैट वाज वन ऑफ द रिग्रेट्स दैट आई हैव कि उस टाइम अगर पता होता ढंग से. तो IIT क्लियर कर लिया. हाँ. so by when you entered in 11th 12th, so you were fluent in English and exposure level was No, so I was very fluent in understanding English. My spoken English became better only after I passed out of Ahmedabad. okay. I was fairly decent in understanding English. Writing English was also fairly good. Great. But the spoken English fluency wasn't very great till the time I passed out of Ahmedabad. तो कई बार बच्चों का होता है ना कि मतलब सबके साथ ही होता है, जैसे 4th 5th से लेकर 10th तक वो एकदम स्टूडियस रहते हैं कि हाँ भी मेरे को फर्स्ट आना ही है. तो 11th 12th के बाद जैसे ही दोबारा नेक्स्ट स्टेज में जाते हैं तो थोड़ा डाउन हो जाता है कि अभी तो चलो अब मौज लेने की उम्र, अब तो मौज लेते हैं. तो वैसा आपके साथ हुआ था या फिर आप एकदम शार्प माइंड से आगे बढ़ रहे थे? नहीं, तो once I joined NSIT and that is the first time in life you felt confident about your future. Because the first day our place को हम भाटिया सर थे, उन्होंने बोला कि भाई यहाँ से प्लेसमेंट सॉर्टेड है. So that is the first time you said कि now at least some parts have been taken away, some stress has been taken away, kind of a thing. Safety kind of Some safety net has been built. Actually, one thing which I have realized over a period of time in India, that good institutes are more like a selection criteria, filtering criteria, and good institutes are also more like a safety net. So it doesn't matter what you get taught in those schools, but once you get there, there is some level of safety net that gets built to you. चाहे वो एक्सपोजर की हो, चाहे वो प्लेसमेंट की हो, चाहे वो एजुकेशन की हो, किसी चीज की भी हो. हाँ, तो वो वाला सीन है, and that is the reason मतलब which I don't see, like for example when I went to Indonesia, I did not see this. India में one of the fundamental way to change your trajectory is to get to a good school. Yeah, good college. And I think this is fairly applicable everywhere in the world. Even in the US, if you manage to get into Stanford, your life is sorted, right? Okay, so how did you get into engineering? So you cleared the entrance exam in the first attempt. What was the story? I started realizing that in 12th, nearly 12th end, that I haven't prepared for IIT. So then I decided to drop a year. I was again a school topper in 12th, but I hadn't prepared for IIT. So and Which school you were from? I was from Bloom School in Vasant Kunj in Delhi. Okay. And that is a point of time I I dropped kind of a thing and I studied for a year for IIT. I cleared my prelims, etc. 1 month before the mains, I started having doubts कि mains clear होगा कि नहीं होगा. And more importantly, I think at that point of time the thought process was अगर आपकी 1500 रैंक आई तो आप ना इधर हुए ना उधर हुए. So I think that is a point of time I took a call that let's focus on DC. Which was, मतलब the questions here was multiple choice questions, and on the mains the questions were subjective questions. Long form. So you cleared DC? I cleared DC. I got 63rd rank out there. अरे वाह. I think that was way beyond my expectations. So how does like family को कैसा फील होता है, आपको कैसा फील होता है, आपकी 63rd रैंक आई तो क्या माहौल था घर में? आपको पता है कि आप, जैसे आपने बताया कि बचपन में पापा ने कहा कि स्कूल को मेरा बच्चा फर्स्ट आएगा, अदरवाइज तो फिर नहीं करेंगे जो भी है. तो अब 63rd रैंक आई आपकी इसमें, तो फैमिली को कैसा फील हुआ, आपको कैसा फील हुआ? तो उस दिन बहुत स्ट्रेस था घर पे. अच्छा. उस दिन बहुत, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, उस दिन सुपर स्ट्रेस था घर पे, और घर वालों ने मुझे जाने नहीं दिया स्कोर चेक करने के लिए. आज तो इंटरनेट पे स्कोर आता है, उस टाइम वो स्कूल में कॉलेजेस में बोर्ड लगते थे, उस पे नोटिस बोर्ड पे रोल नंबर वाइज नंबर्स रैंक आती थी. So somebody from my father's friend family went there to see the rank, and then he called up at home and saying कि इसका 63rd rank आया है. So then like almost everybody was very surprised कि इतना तो बहुत अच्छा है and all that kind of stuff. So the whole family became very happy kind of a thing, and that is a point of time. The level of confidence also it brings, saying you belong to that level. Till that time you did not compete with the external world. Correct. That was probably the first time you were competing with the external You have world. proved yourself कि हाँ भी like I am in the market or I am in the world to to took my place. हाँ जी. So you got to NSIT द्वारका. तो आपने थोड़ा मिस नहीं किया? मतलब बच्चे कॉलेज के लिए हमेशा बाहर जाते हैं, मतलब होम सिटी से. So was it an advantage or was it a disadvantage? नहीं, एक्चुअली थोड़ा सा आपको डिसाइड करना पड़ता है कि आपको मतलब आप क्या क्या चॉइसेस हैं. You chose already कि I need to be in Delhi.
That's why you. नहीं, that was not the way. It was like you want to be a part of a good college. You were very clear कि भाई you want to be part of a good college, and depending on what are the options at that time, DC was, and even today, like DC and SIT are among the topmost colleges out there. Undoubtedly. And what also happens at that point of time, used to happen at that point of time, was every college had its own separate entrance exams. So you had filled only 4 or 5 forms or 6 7 forms. So you, between those 5 5 6 7 forms, you had those choices. And आज की डेट में see, the parents are very comfortable kids going out say. Now the examination has been centralized. हाँ, now AIEEE happens kind of a thing. पर उस टाइम तो पेरेंट्स भी चाहते थे कि दिल्ली रहो, आ जाओ. And for first 6-8 months, I was a day scholar. Okay. So which would mean that go in the morning and come back in the night. So after 8 months, you chose to stay in hostel. Yes. What was the reason? No, so it was availability of hostel at that point of time. So and we were like, NSIT has just moved from Kashmiri Gate to Dwarka at that point of time. Hostels were just getting constructed. And also the realization was like it was taking 2 hours, 3 hours one way, changing 3 buses, 4 buses to go to Paharganj to Dwarka. Today we have metros and everything, so it is easy. But that time it used to be very hard kind of a thing. Okay. And also the other part was like as you also mentioned, gradually seeking more freedom. Once you are at a hostel, you are able to spend more time with your college friends. तो लाइफ कैसे चेंज हुआ हॉस्टल जाके थोड़ा? Significantly change हुआ. मतलब आपके पास सडनली बहुत टाइम है, आप रात के 12, 1, 2, 3 बजे भी दोस्तों के साथ घूम रहे हो. उस टाइम वहाँ हॉस्टल्स में इंटरनेट का एक्सेस नहीं होता था. लाइब्रेरी में होता था बट हॉस्टल्स में नहीं होता था. But your interaction with people just go up very significantly. As a day scholar, you are just looking at to see day कब खत्म हुआ and then you go back home. Here, like the day was starting after the classes are over. कहते कि कॉलेज के जो So the day was starting after the college was over. So that was the change from a day scholar to a hostelite. हाँ जी, significant change. Okay. So how was the engineering first year and all? आपके टाइम में रैगिंग वगैरह तो काफी हुआ करता होगा. हाँ, काफी होती थी उस टाइम. मतलब हाउ यू डेल्ट विद दैट? नहीं, कुछ नहीं. आपने NFED शीट्स बनाई, इंजीनियरिंग ड्राइंग की शीट्स थी. आपने काफी सारी टेक्निक्स भी सीखी जिससे शीट फटाफट बनती है. बट इट आल्सो हेल्ड बिल्डिंग अ लॉट ऑफ रैपो विद द सीनियर्स. आई थिंक अच्छा, कुछ रैगिंग में वियर्ड हुआ था या इट वाज यूजुअल? प्रेशर था. मतलब सम ऑफ द थिंग्स दैट यू हैड टू डू यू हैड नॉट डन एनी टाइम अर्लियर इन योर लाइफ. So मतलब it opened up a lot kind of a thing. There was a lot of pressure also. मतलब कभी किसी को अप्रोच करके कुछ बोलना हो, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हुई थी उस टाइम. बट नथिंग विच लाइक इफ़ आई रिफ्लेक्ट बैक टुडे, क्या वो मुझे कुछ आज ऑड लगता है उसमें? मुझे नहीं लगता उसमें. So when I entered in college, I think 2006-07, so I was also ragged. तो मेरे को तो मज़ा आया था. मतलब काइंड ऑफ आज मैं सुनता हूँ कि रैगिंग को देख के काफ़ी लोग, आई वाज सो एक्साइटेड कि कोई रैग करेगा मेरे को तो आई विल परफॉर्म बेटर. एंड I think physical part of ragging was bad. That didn't happen with me, but I heard with some folks. Nothing physical happened with me. As long as physical doesn't happen, मतलब it was okay. But I had heard that physical part also, somebody getting slapped, etc. happened at that point of time. So you topped the school. You got a very good rank in DC. 63rd rank is commendable, incredible. Did you manage the same form in the college as well? Or first year, second? So I think first year, I think second semester, I was among the top 3 guys of my class. But at that point of time, you were like, now I want to relax a bit. Okay. So that is, and also what happened was in NSIT, it was very clear that as long as you have 70% score in your classes, you are eligible for all top jobs kind of a thing from a placement. So placement point of view. So the idea was you have to be 70% plus. सर ऐसी कोई मेमोरी कॉलेज की जो अब तक याद हो आपको, इंजीनियरिंग कॉलेज की? क्योंकि वहाँ पे बहुत वियर्ड चीज़ें होती हैं और बहुत अच्छी चीज़ें भी होती हैं. कोई ऐसी बढ़िया मेमोरी जो आपको अभी तक याद हो? काफ़ी सारी चीज़ें थी यार. मतलब लाइक आपने काफ़ी दोस्त बनाए वहाँ पे जो आज भी आपके टच में हैं. सिमिलरली लाइक आपने बहुत उस टाइम कोडिंग, मतलब यू रियलाइज कोडिंग इज़ योर फर्स्ट लव. आपने भर भर के कोडिंग करी. उसके बाद यू वेंट टू अ लॉट ऑफ कॉलेज फेस्ट. एंड मतलब उस टाइम तो वो सब कुछ होता था कि आप मेडिकल फेस्ट में जा रहे हो और वहाँ पे कॉलेजेस की एंट्री बैंड है एंड देन यू आर ट्राइंग टू फिगर आउट अ जुगाड़ टू गेट इन ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ. तो काफ़ी कुछ हुआ. प्लस थर्ड ईयर में आई थिंक दैट इज़ अ पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन द प्लेसमेंट्स वर बैड. 1.5-2 years.
सो फोर्थ ईयर के बिगनिंग में यू आर लाइक यार प्लेसमेंट होगी नहीं होगी, क्या होगा नहीं होगा. सो यू वेंट थ्रू ऑल दैट. तो आपने फिर इंजीनियरिंग के बाद आपने एमबीए करी, तो एमबीए फिर आपने प्लेसमेंट के लिए अप्लाई करा था या नहीं करा था? फिर आपने प्लेसमेंट के लिए अप्लाई किया था. 2 जॉब्स की, एक टीसीएस में लगी थी, एक यूटी स्टारकॉम में लगी. उसके बाद आई गेव माई एमबीए एग्जाम्स. I got selected into IFT, MDI, etc. I did not get any call from CAT at that point of time. My percentile was 99 plus, but I did not get any call, and I was super depressed. Okay. So when you were in college, I'm talking about engineering. Second year, you said कि थोड़ा relax mode में आ गया था. तो second, third year में कभी date wait भी किया कुछ या ऐसा सोचा? Because at that point of time, you know. हाँ वो सब था यार, वो सब तो होता ही है कॉलेजेस में. जस्ट दैट हमारी प्रॉब्लम ये थी कि इंजीनियरिंग कॉलेज में उस टाइम लड़कियां कम होती थी. हाँ मतलब आज की डेट में तो फिर भी डाइवर्सिटी है तो एनफ है. तो वो जो डेट जो भी हुए होंगे तो इंजीनियरिंग कॉलेज में हुए या फिर साइजेबली बाद में हुए. उस टाइम तो बात ही कर लेते थे, वही बहुत हिम्मत वाली बात होती सर कह रहे हैं साइजेबली बाद में हुए. ओके. और उससे पहले तो एंड दूसरा क्या है कि एनएसआईटी वाज इन द्वारका, तो द्वारका वाजंट कनेक्टेड. सो अनलाइक फॉर एग्जांपल सम ऑफ द कॉलेजेस व्हिच आर इन, मतलब डीयू के कॉलेजेस वगैरह मिस किए, नहीं तो कुछ और भी स्कोप थे. और वैसे भी जो ज़्यादा पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनको ज़्यादा डेट के ऑप्शन मिलते हैं. मेरे ये डाउट सोल्व कर दी. बट प्रॉब्लम है कि वो थोड़ा अवॉइड करते हैं इसको. दैट्स व्हाई दे आर गुड इन स्टडीज. तभी साइजेबल बाद में हुआ. तो सर ये कॉलेज हुआ, आप प्लेसमेंट कॉलेज से हुआ? हाँ कॉलेज से. व्हिच वाज द फर्स्ट कंपनी? TCS came on the first day. We got placed on the first day itself. व्हाट वाज योर सैलरी? TCS salary offered was about 17,000 rupees per month. Circa which year? This was 2004. 2004. 17. It's quite handsome that. Fairly decent था मतलब, and at least it was a lot of a sense of relief because for 2 years the placements were bad because of the whole .com bust and everything at that point of time. So getting placed on day one itself, मतलब it also built a lot of confidence. saying ठीक है यार मतलब डरने की जरूरत नहीं. And what was the family reaction when you just showed them the So for parents, Tata company was Tata company, like you are in Tata's company, so good, very good kind of a thing. Okay. So you work for TCS? No, so I got a second offer from a company called UT Starcom. Okay. UT Starcom was in telecom domain. Okay. And that company Was company or? Huh? Was company or? Yeah, similar to was company. So similar to Paytm. So Paytm had a no, so there used to be GSM, there used to be CDMA, and then there used to be another technology called PAS. Yeah. Okay. So that company was in PAS technology in China. They were looking to enter India. What was PAS? I know CDMA, I know GSM. So the CDMA and GSM requires a lot of towers. Okay. PAS, you required some, like you did not require towers. You required some level of I don't remember the term, like small setup, like transistor kind of a setup. It need to be in home or? You can put it at a lot of places. Okay. So all the signals get transferred through that. So you don't have to put a large towers, but you have to put a small number of Capex कम था मतलब. Capex भी कम था, and quality of communication etc. वो सब better था. Was good than GSM and CDMA? Better than GSM and CDMA. I came to know about CDMA because वो Reliance 501 वाली फोन निकाली थी. लो CDMA was, yeah, कर लो दुनिया भट्टी में. Yes. So you joined that company. What was the salary offered there? Must be greater than TCS. 23,000 टाइप था per महीने का. It was 6-7,000 more. हाँ तो sizable था मतलब, और आप खुश थे. तो बट ये था कि ये एक बार क्लैरिटी थी कि MBA करना है उस टाइम. So you joined in Delhi itself? हाँ, I joined. This company was a Signature Tower in Gurgaon. Oh, Signature Tower was one of the early building in Gurgaon. Signature Tower was like the end point of Gurgaon at that point of time. Yeah. मतलब so I used to take first a bus coming from Paharganj to Hanuman Murti, then second bus from Hanuman Murti to IFCO Chowk, and then third bus from IFCO Chowk to Signature Tower. It must be so hectic for you. हाँ तो और उस टाइम वो कॉल सेंटर की गाड़ियाँ चलती थी, तो यूज्ड टू बी लाइक किस्मत है अगर गाड़ी मिल गई तो बहुत ही बढ़िया है. I also traveled in that. द्वारका से काफी अब हमारे टाइम में, I'm talking about 2010-11. So स्टेंट कितना लंबा था सर? 1 साल का था. 1 साल का था. मैंने जॉब करी, जॉब के साथ साथ मैं कैट की तैयारी करी मैंने. आई गेव माई कैट एग्जाम्स, कैट एंड FMS एग्जाम, 2 एग्जाम फिल किए थे. तो कैट में आई गॉट इनटू IIM अहमदाबाद एंड फर्स्ट अटेम्प्ट. मतलब वो फर्स्ट अटेम्प्ट में तो IFT MDI हुआ था. So you didn't
I get applied into for those? CAT, but I did not get any call from the CAT. मतलब I had 99. So MTI IIFT से आया था, आप नहीं गए वहाँ पे? हाँ मतलब वहाँ सिलेक्शन हो गया था. There was a clarity कि I have to get into तो ये भी बड़ा IIM. इंटरेस्टिंग था कि IIFT का मैंने क्लियर किया, हमने फीस भी भर दी, फिर पता नहीं अचानक दिमाग में क्या आया, तो फीस जाके विड्रॉ कर ली, तो घर पे झगड़ा भी हुआ. पापा ने बोला कि अरे तेरा हवा में रहने की आदत है तेरी, तो बाहर निकलो. मतलब एक अच्छे कॉलेज में हो रहा है. IIFT इज एक्चुअली, इफ आई लुक बैक, Yeah. I think that would be a foolish decision as Foreign well. trade. Right? हाँ मतलब it was a good college. It's still a good college. Yeah, kind yeah, of. I yeah. think both IIFT and MDI. But there is no comparison between IIM Ahmedabad and. यार पता थोड़ी था उस टाइम हो जाएगा. Of course. But I'm saying just that now if I reflect back, I think that those kind of risks could have been avoided kind of thing. So in second attempt you cleared CAT, you got into IIM Ahmedabad. So I got both into Ahmedabad as well as FMS. So you felt secure when you got into NSIT. So what was the feeling when you got into IIM Ahmedabad? Obviously when you go, when I went to Ahmedabad, I went with the parents and everything, and like it's a whole like that hello around that whole place is very very different. Like when you start seeing photographs of the people who have passed out from there, who have done excellent jobs, suddenly you are like 10 years 15 years down the line, like that is your journey as well. Yeah. Those kind of discussions, like thought processes were very very different. Also I think first couple of weeks also you started realizing that the quality of talent is amazing. Yeah. आप तो कुछ हो ही नहीं, मतलब लाइक वो जो एक आपको होता है लाइक you had done basic placement, basic internships etc. and your next door guy has done 3 foreign internship and you're like अरे हमने तो कभी सोचा भी नहीं foreign internship भी होती है. तो suddenly the quality of talent that you were with was very very different kind of. Okay. So you got into IIM Ahmedabad, one of the best business school, right? But when you know applied 2005-6, in those era clearing UPSC, सिविल सर्विसेज का काफ़ी क्रेज था और खास करके दिल्ली में. और आई एम श्योर आपके बहुत सारे दोस्त होंगे NSIT के who attempted for UPSC. So you never thought about So it? यार ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ये थोड़ा सा ना कॉलेज के एनवायरनमेंट पे है. तो NSIT was a lot more towards MBA. Okay. If you go to IIT Delhi, it's a mix. You will see a lot of UPSC guys, you will see a lot of MBA guys, etc. But NSIT was hardcore into MBA. So I came to Delhi for the very first time in 2004 and I stayed here for 7-8 months. My brother was pursuing graduation from Hansraj. So one of my distant cousin was in IIT Delhi. And IIT Delhi, most of the people were not towards entrepreneurship. There were 2 streams, IES, Indian Engineering Services, and UPSC. मतलब उस वक्त I didn't sense entrepreneurship or you know. No, it is also a function of where you come from. Yeah, yeah. मतलब what I have realized Yeah, is from people from Bihar. like if you are coming from UP, if you are coming from Bihar, you see Mostly the power UPSC. of the government servants, and you are like There is always affinity towards. when you grew up in Delhi, you are less exposed to the government. When you are less exposed to the government, you don't see a lot of power at that point of time. So that becomes very very different. So you never thought about UPSC. UPSC कभी सोचा भी नहीं था. And did you later on realize कि you should have attempted at least once or something? Yeah, I think these are different streams kind of a thing. मतलब you can't do UPSC and CAT together. So you'll have to make a choice whether you want to go to this side, you want to go to that side kind of a thing. Okay. So when you got into IIM, तो वहाँ पे पहला how was the experience for the first few months? Super hectic. मतलब I think I found it very hard to survive. मतलब like वो genuinely मतलब back to back classes and IMA has a culture of surprise quizzes. Yeah. What does surprise quizzes means? At 2:30 in the afternoon, you would know that there is a 3 p.m. quiz of a random subject. तो ये मतलब वो बहुत प्रेशर क्रिएट करता था. प्लस आई थिंक टाइमलाइन वाइज 8 o'clock means 7:59:59. It is not 8 o'clock. That kind of stuff. So hectic. मैंने MBA को देखा हूँ कि MBA को खास करके ऐसे करिकुलम को डिजाइन करते हैं, फ्रेम करते हैं कि they always keep you busy. So at least 14 hours, 13 hours in a day. तो वही grind था 14 hours. हाँ तो काफ़ी ज़्यादा grind था. And when you are competing with very high quality people, a lot of people like for the first time in my life I was reading the paper and I saw somebody just walking out and saying सर कर दिया है. भाई अभी तो मैंने पढ़ रहा हूँ, पेपर कर दिया, ये कैसे हो सकता है?
So what was the mix in the class? Mostly engineer थे, मतलब थोड़ा background. हाँ मतलब आई थिंक 75-80% इंजीनियर्स होंगे। And आज भी ऐसा ही है क्या? और नहीं, आज डिफरेंट है, आज दोनों ही चीज़ें चेंज हुई है। नॉन इंजीनियर्स काफ़ी ज़्यादा है और फीमेल्स काफ़ी ज़्यादा है। मतलब उस टाइम फीमेल्स आई थिंक 7-8-10% होगी। आज व्हाट आई एम हियरिंग इज अबाउट 30-35% है। तो दैट्स वेरी साइजेबली डिफरेंट। सिमिलरली नॉन इंजीनियर्स आर फेयरली हाई नाउ, अनदर 30% है। सर एमबीए का कोई दोस्त जो अभी स्टार्टअप कर रहे हो आपका, जो आपके बैचमेट हो या फिर सीनियर हो या जूनियर हो? काफ़ी सारे लोग काफी हैं। सारे, एक दो जो वाइटल स्टार्टअप अभी परस्यू कर रहे हैं। मतलब मेरे बैच में जैसे विनीता थी, तो विनीता शुगर कर रही है अभी, शुगर कॉस्मेटिक्स। उसके बाद फिर मतलब ऊपर नीचे में तो मतलब काफ़ी सारी जनता है, ये सब अभिराज अर्बन कंपनी हो गया। उसके बाद ध्यानेश एक बैच जूनियर है, तो ध्यानेश इज डूइंग मोज़ेक वेलनेस। उसके बाद क्या कहते हैं, मतलब मिड लेवल स्टार्टअप्स भी कई सारे लोग कर रहे हैं। Okay, sure. प्रणय है, प्रणय 91 स्प्रिंग बोर्ड का फाउंडर है। So MBA was two years PGDM, right? PGDM. Okay. So how was the first year and difference क्या था first and second year? So two things that happened is in IMA your first year marks count for placements. Second year marks don't count for placements. Okay. Why it is so? That's how it has been designed kind of. मतलब कुछ भी तो लॉजिक होगा, आपने क्या समझा? नहीं समझ आया। कोई नहीं। तो पहला तो ये था। दूसरा क्या होता है कि फर्स्ट ईयर के एंड तक आपको पता होता है कि यार आपका इंटरेस्ट क्या है, आपका स्किल सेट क्या है, आप कहाँ जा पाओगे एंड सो फोर्थ। तो फॉर एग्जांपल मेरे को बड़ा क्लियर हो गया कि मेरे को बैंकिंग या कंसल्टेंट नहीं बनना है। मतलब वाइल IBD एंड द कंसल्टिंग वाज द हाईएस्ट इन डिमांड जॉब एट दैट। क्यों नहीं? उस वक्त सबसे सेक्सी पेइंग जॉब मैकेंजी ही, मतलब कंसल्टिंग फर्म थे। सो यार समहाउ Deloitte. हाँ, तो समहाउ एक वो रियलाइजेशन था। मतलब एंड ये पर्सनल लेवल पे है, फॉर पीपल डिफरेंट काइंड ऑफ अ थिंग कैन हैपन। इज लाइक इट इज वेरी हार्ड टू गेट इनटू समथिंग, अंडरस्टैंड इन 1 month, बिल्ड आउटपुट रिपोर्ट सेइंग ये बनाना चाहिए इन 1 month, एंड very limited execution. You move from one project to another, second project to another. So you get a lot of industry understanding, but are you executing something or not? That's the question. And if you don't execute, like how much of what you are recommending is actually valid? So मतलब मेरे को लगता है मोस्ट ऑफ द ब्राइट बच्चे जो होंगे IIM में वो कंसल्टेंट बने होंगे। आपको क्यों नहीं बनना था? मेरे को ये लगा कि यार मेरे को वो करना है जिसमें मेरे को मजा आए। तो मजा नहीं था उसमें? क्यों मतलब नहीं मजा था? वही मैंने कहा ना कि आप इस महीने आप ऑयल एंड गैस का प्रोजेक्ट कर रहे हो, अगले महीने आप फूड में कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो, उसके बाद आप गवर्नमेंट का कुछ कर रहे हो। तो लाइक हाउ डू यू बिल्ड कन्विक्शन ऑफ व्हाट यू आर सेइंग? एंड व्हाट वाज द सैलरी ऑफ दैट टाइम फॉर द कंसल्टेंट्स? क्या ऑफर करते थे? तो इफ आई लुक एट फ्रॉम अ स्टार्टिंग सैलरी पॉइंट ऑफ व्यू, लाइक 18-20 लाख रुपए टाइप था स्टार्टिंग सैलरी। IBD में ज़्यादा, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में ज़्यादा था, डिपेंडिंग ऑन वेदर यू गेट प्लेस्ड इन इंडिया, वेदर यू गेट प्लेस्ड आउटसाइड एटसेट्रा। तो थोड़ा ज़्यादा। ये 2007 की बात है? ये 2007 की बात। So from one of your classmate, I got to know that you run a souvenir store of IIM Ahmedabad, and you turned around the business. हाँ जी। That friend told me that that store was in losses. So क्या डिफरेंट किया आपने? तो यार मतलब IMA का स्टोर था, जैसे IMA के टी शर्ट्स, IMA के सोवेनियर्स वगैरह वो सब बेचता था, एंड वो लॉस मेकिंग था। मतलब दैट यूज्ड टू लूज अबाउट 1 lakh rupees per annum काइंड ऑफ अ थिंग। सो मतलब बेसिक हाइजीन फिक्स किया, मतलब उसका लोकेशन चेंज किया, उसके बाद उसका क्वालिटी ऑफ क्लोथ्स चेंज किया। लाइक वो पहले टी शर्ट्स थी वो बहुत हल्की क्वालिटी की थी, उनको बेटर किया। उसके बाद प्राइस पॉइंट्स ठीक किए, इन्वेंट्री मैनेजमेंट ठीक किया, कितनी ऑर्डर करनी है, कब नहीं करनी है, एंड सो फोर्थ। मतलब वो लाइक फॉर एग्जांपल स्टोर किस टाइम से किस टाइम खुला होना चाहिए, ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ। सो बेसिक फिक्सेस किए, बट द बेसिक फिक्सेस वर्क्ड। तो मतलब आई वाज मोर लाइक समबडी सेलिंग IMA सोवेनियर। मतलब लाइक वो स्टोर लॉस मेकिंग कैसे हो सकता है? इनफैक्ट एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, बाय द टाइम आई लेफ्ट, मतलब वी हैड टू इवन टेक दोज कॉल्स दैट वेदर वी वांट टू अलाउ नॉन IMA गाइज टू वियर IMA टी शर्ट और नॉट। मतलब तो आपने क्या अलाउ किया क्या ऐसा कुछ स्केल के लिए? नहीं किया। वो हमारी थोड़ी ईगो भी थी कि IMA की टी शर्ट तो IMA का ही बंदा पहनेगा। सही बात है। तो मतलब आज की डेट में आप देखते हो तो इट रिफ्लेक्ट्स बैक सेइंग हार्वर्ड की टी शर्ट कोई भी पहन सकता है, कोई भी खरीद सकता है, बट उस टाइम वो एक ईगो थी। बट विद इन दैट ईगो ऑल्सो हाउ डू यू मेक श्योर दैट द स्टोर हैज टू रन प्रॉफिटेबली?
So I had put in a lot of effort on this. It was in first or second year? Second year. Okay, okay. So second year यहाँ थोड़ा relax था, first year Second से? year relax था. So how was the dating scene here? Again, बहुत limited. As he split mentioned, was- sizable हो गया था. No, so I think what also happened was within college limited होगा, but because Ahmedabad overall has a fairly large city. large city है, enough colleges हैं. तो गुज्जू को डेट किया आपने? तो आपको सिटी कैसी लगती है, दिल्ली और अहमदाबाद, कौन सा? तो I think I like both the cities, but given a choice, मतलब like Ahmedabad, मतलब small city है, relatively as compared to Delhi, travel easier है, people far more friendlier कम है. Pollution actually उस time दिल्ली में कुछ नहीं होता था. But it was more like food बहुत बढ़िया था. I think one thing, हाँ, मतलब one thing which you मैंने realize, पहली बार कोई बंदा फाफड़ा देखा जो कह जलेबी रहा है वगैरह? हाँ, मतलब not only Ahmedabad Guju food, but also like in 2007 they used to give you golgappas with gloves in hand. Oh, ओह हाइजीन प्रॉपर. मतलब वो, मतलब आप सोच रहे हो कि भाई इसने ग्लव, मतलब लाइक आई वाज मोर लाइक इसने ग्लव क्यों पहने. मैंने दिल्ली में कभी किसी को ग्लव पहने देखे ही नहीं थे. गोलगप्पे तो हम यहाँ भी खाते आए हैं, बट वहाँ मैं पहली बार देख रहा हूँ. मतलब वहाँ आप, एंड वहाँ कल्चर वैसा है जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली में आपको ब्रेकफास्ट नहीं मिलेगा कहीं. अगर आप सोचोगे मैं सुबह 7:30 बजे उठ के आसपास कहीं ब्रेकफास्ट कर लूँ तो आपको ब्रेकफास्ट नहीं मिलेगा. अहमदाबाद में भर भर के जॉइंट्स थे. फाफड़ा जलेबी और वो सब कुछ आपको पोहा मिलेगा, मतलब लाइक आपको पराठे मिल जाएंगे. एक वो पराठा था जो बिल्कुल पतले पतले से होते हैं, उसको कुछ क्या कहते हैं? हाँ, तो वो काफी कुछ वैरायटी. मतलब अहमदाबाद इज अ सिटी फॉर फूड. और मतलब जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली में दूसरी प्रॉब्लम ये होती है कि आपको रात को 12 बजे 1 बजे खाना है. हाँ. दिल्ली 10 बजे सो जाती है. अब अहमदाबाद वुड हैव स्पेसिफिक स्ट्रीट्स व्हिच आर ओपनड ओनली इन द नाइट. लाइक फॉर एग्जांपल आप इंदौर जाओ तो इंदौर में सराफा बाजार है. तो रात को शाम को 8 बजे तक वो सोना चांदी बेचते हैं. 8 बजे के बाद उसी रोड पे लोगों ने फूड स्टॉल लगाए थे जो सुबह 3-4 बजे तक चलते हैं. तो अहमदाबाद इज ए गुड सिटी, पीसफुल सिटी, वेरी फ्रेंडली, एंड पीपल आर ऑल्सो लेस स्ट्रेस्ड काइंड ऑफ अ थिंग. एंड काम से काम रखते हैं. उस टाइम अहमदाबाद का इंफ्रा कैसा था? अच्छा था दिल्ली का कंपैरेटिवली? नहीं, ऑब्वियसली दिल्ली तो दिल्ली थी उस टाइम. एंड दिल्ली तो मतलब विद शीला दीक्षित एटसेट्रा उन्होंने काफी फ्लाईओवर्स वगैरह बनवाने शुरू किए थे एंड सो फोर्थ. दिल्ली में उस टाइम मेट्रो भी आ गई थी 2006-7 टाइप्स. अच्छा, गांधीनगर एंड अहमदाबाद इज ट्विन सिटी लाइक मोहाली एंड चंडीगढ़? हाँ. ओके. तो बट मोस्ट ऑफ द पीपल लाइक गांधीनगर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम was a very sparsely populated city. Okay. तो गवर्नमेंट ऑफिसेस थे. इट वाज अबाउट आई थिंक 10-20 किलोमीटर्स टाइप था. तो लोग रहते अहमदाबाद में थे, ऑफिस जाके आ जाते थे. ओके, श्योर. सो प्लेसमेंट कब हुआ आपका? मतलब सो प्लेसमेंट्स वहाँ से 2008? हाँ, तो उस टाइम हुआ. तो आई गॉट प्लेस्ड इनटू एंड इंसिडेंटली प्राइवेट इक्विटी फर्म कॉल्ड 8 कैपिटल. 8 कैपिटल. It was 8 numeric or? AIGHT. Okay. And incidentally that I got that मतलब that time private equity offers used to be like considered very good offers kind of a thing. And I got placed purely because of my souvenir store stint. Okay. And what was the package there? I think 24 या कुछ तो था. So how was the mood at the home? बहुत अच्छा था. मतलब like बहुत ही बढ़िया है कि बहुत ही सही है that kind of stuff. But I also realized that again the same thing कि यार मैं किसी बिजनेस वाले को क्या समझाऊंगा बिजनेस कैसे करते हैं जब मैंने खुद नहीं किया हुआ. तो आई वांटेड टू गेट इनटू समथिंग ऑन डूइंग बिजनेस. तो वो कब डिसाइड किया आपने? पी स्टेंट में या फिर पी स्टेंट नहीं, आई एम सोवेनियर स्टोर से ही. तो देन आई रीच टू दीप इन मेक माई ट्रिप. ओके. उस टाइम मतलब एक आई थिंक वन मोर रियलाइजेशन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वाज दैट टाइम वी यूज्ड टू कॉल अप फ्रेंड्स इन यूएस एंड से यार तो यूएस से आ रहा है तो डिजिटल कैमरा ले आई हो अमेजन से ऑर्डर करके, या लैपटॉप ले आई हो जैसे आज लोग आईफोन बोलने के लिए. हाँ. तो और उस टाइम क्या होता था, फंडामेंटल फिलॉसफी क्या होती थी कि यार क्योंकि ऑनलाइन खरीद रहा है बंदा तो ऑनलाइन में स्टोर का कॉस्ट नहीं होता, पीपल का कॉस्ट नहीं होता है. तो दैट इज द रीजन अमेजोन इज चीपर. दैट यूज्ड टू बी फिलॉसफी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. सो आई सेड एंड आई डन माय समर इंटर्नशिप एट ITC. तो आई ऑल्सो रियलाइज दैट एनी कंपनी विच हैज inventory details availability of last minute store would have a very very strong grip on the ground. Okay. Like अगर इस एरिया में ITC के 50 स्टोर है, किस स्टोर पे ITC का कितना सामान पड़ा है,
अगर आईटीसी को पता है तो आईटीसी रिप्लेनिश फास्टर कर सकती है. बिल्कुल. तो आज क्या होता था या उस टाइम क्या होता था कि इट वाज डिपेंडेंट ऑन वेदर द सेल्स गाय वेंट टू दैट शॉप और नॉट, और ऑन द कॉल. और हाँ मतलब जो वो भी फिर था, रिकॉर्ड करता था, फिर वो रिकॉर्ड करता था, अगले दिन आता था सामान. अब उसकी अगर शॉपकीपर से नहीं बन रही है तो वो नहीं करेगा एंड सो ऑन सो फोर्थ. और आईटीसी तो बिकॉज इट वाज अ लीडर इन सिगरेट्स, सेल्स गाय एक्चुअली हैड नो इंसेंटिव टू एक्चुअली, मतलब बाकी सब जगह तो क्या होता था, सेल्स गाय कहता था सर ले लो सामान प्लीज, जैसे एचएलएल वगैरह का सर प्लीज ले लो. आईटीसी वाला कहता था लेना तो लो नहीं तो मत लो, मतलब लाइक सिगरेट तो बिकनी है, आप नहीं बेचोगे तो कोई साथ वाला बेचेगा. सो आई रियलाइज दैट वो कंपनी के लिए लॉस है. एंड फॉर अ लॉट ऑफ इंडियन कस्टमर्स, मतलब आपको पेंटीन नहीं मिलेगा तो आप हेड एंड शोल्डर ले लोगे, करेक्ट. हेड एंड शोल्डर नहीं मिलेगा तो आप कोई और दूसरा ब्रांड ले लोगे. सो शॉपकीपर विल सेल, कस्टमर विल टेक some brand in the same space, but it is a company which is वो सफर करेगा. वो सफर करेगी. तो I said like at that point of time वो थोड़ा सा वो दिमाग में आ गया. So you worked with ITC for a year? To about 2 months. 2 months. Internship. तो फिर वो रियलाइजेशन हो गया था कि यार इंटरनेट तो फेयरली पावरफुल है. तो आई वांटेड टू डू अ जॉब इन एन इंटरनेट कंपनी. एंड उस टाइम में ये 2-3 ही इंटरनेट कंपनियां थी बड़ी, मतलब मेक माई ट्रिप थी, शादी.com थी, नौकरी थी, ये 2-3 ही कंपनियां थी, इसके बियॉन्ड नहीं थी. तो व्हाट इज द स्पेसिफिक रीजन टू अप्लाई इन एमएमटी? तो यार इन 3 कंपनियों में पहली चीज़ तो ये हुई कि नौकरी बड़ी हो गई थी, लिस्टेड थी, तो नहीं जाना चाहता था, थोड़ा अर्ली स्टेज जाना चाहता था. और शादी आप ज्वाइन नहीं कर सकते क्योंकि उस टाइम आप जस्ट कॉलेज से पास आउट हुए हो. यू डिडंट वांट टू बी इन अ स्टेज वेयर योर पेरेंट्स से तेरे पास तो पूरे डेटाबेस का एक्सेस है, बढ़िया लड़की ढूंढ ले आप. So that was the motivation not to join शादी. That was the motivation not to join शादी at that point of time. मतलब मैंने कैजुअली पापा लेकिन वो ट्रेजर ट्रॉफ था, आप इतने बड़े डेटा पे तो सॉर्ट कर सकते हो आराम से कौन सी चीज है कौन सी. हाँ, तो मतलब वो मतलब पेरेंट्स को तो नहीं समझ आएगा ना. अच्छा वो पहले से सॉर्टेड था क्या? क्या चीज? वो शादी वाला कंपोनेंट पहले से सॉर्टेड था क्या? That's why you didn't move. नहीं. I didn't want the pressure of immediately thinking of marriage. And उस time And joining शादी might be played a role of catalyst. So you avoided it. हाँ, so थोड़ा सा वो था. And then obviously I reached out to Deep. And it was 1-to-1 call to Deep? हाँ 1-to-1 था. You knew him or it was a cold नहीं, call? Deep was IMA alum. Okay. तो जब आप There was a connection. हाँ तो वो आप एज alum आपने रीच आउट किया, बोला कि सर मैं इंटरनेट में बिजनेस बनाना चाहता हूँ, कैन यू सजेस्ट इफ देयर इज एन अपॉर्चुनिटी आउट हियर विद यू. सो ही सेड कम ओवर काइंड ऑफ अ थिंग. तो मैं वहाँ गया एंड इंसिडेंटली मेरे को 4 घंटे रिसेप्शन पे बिठाया गया. क्यों? वो इसलिए हुआ कि दीप उस दिन ट्रैवल कर रहे थे, उन्होंने किसी को बोला होगा. एंड दीप मेक माई ट्रिप में सारे इंटरनली ग्रो हुए थे लोग कॉल सेंटर से. सो एवरीबडी वाज लाइक यार आईएमए का बंदे का इंटरव्यू हम कैसे लेंगे. तो वो उस तरह से था. आई डिडंट रियलाइज दैट. एंड दीप हैज अ अमेजिंग ऑरा, मतलब इन टर्म्स ऑफ. सो यू जस्ट डिफाइन मीटिंग में क्या हुआ दीप के साथ फर्स्ट टाइम? हाउ वाज द मीटिंग? So Deep is like a guy who thinks deep, who is able to communicate very well. He is a very good listener. And I met him and I told him कि सर बिजनेस बनाना है. तो he said यार देखिए क्या है कि हमारे यहाँ पे B2C बिजनेस के मल्टीपल फादर्स है. B2B बिजनेस का कोई फादर नहीं है हमारे यहाँ. एंड इंडिया में अभी 98-99% बिजनेस तो B2B ही है. ट्रैवल एजेंट्स कॉर्पोरेट्स के थ्रू ही होता है. इंटरनेट पेनिट्रेशन एटसेट्रा इज लेसर. तो इफ यू वांट यू कैन लुक एट द B2B बिजनेस. तो मैंने कहा ठीक है. तो यू आर द फर्स्ट वन टू स्टार्ट और पहले से चल रहा था? नहीं चल नहीं रहा था. बिल्कुल आपने पहले. इनफैक्ट मेक माई ट्रिप वाज साइजेबली B2C कल्चर. मतलब उनको B2B के बारे में कुछ नहीं पता था उस टाइम. सो यू जॉइंड MMT in 2009? 2007. Just after passing out. After passing out 2007, you joined MMT. So B2B business build किया. So what was the early learnings and what things you executed? यार काफी सारी अच्छी learnings थी. देखो तो आपने टीम खुद से बनाई या खुद बनाई. So please discuss. So actually 7-8 was a bad time if you look at from a market point of view. Lehman Brothers, Lehman वगैरह सब crash हुआ and so on and so forth. So company wasn't ready to invest at that point of time in any new business. Okay. So while I was there trying to understand क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा. It was a great thing that MMT survived that turmoil. Yes. It was a great thing. Yes. तो काफी सारे survival lessons वहाँ देखे मैंने. 7-8 में मैंने अपनी लर्निंग अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करी B2B बिजनेस की, लोग कैसे काम करते हैं कैसे नहीं करते हैं. एंड देन वी स्टार्टेड स्केलिंग ऑफ द B2B बिजनेस. इन नेक्स्ट 2 years, like 2.5 years, we went to about 16,000-17,000 agents
तो fairly sizable distribution across India बनाई. Then we got corporates like Infosys, Asian Paints, etc. also on board. They were using our systems to make the reservation for their employees and everything. That B2B business became 1/3 of Make My Trip business. Maybe 1/3, maybe 1/4, something of that. So How much time did you take? about 2.5 years. Okay. And it was profitable. including a hotel or only? Primarily flights. That time, all internet business was flights. Okay. And what was the scale at that time for B2B? So we were doing, well, this was I think 500-600 crore annually GMV kind of a business at that point of time. Okay. Maybe 700, something of that sort. 4-5% of the GMV is the revenue or 5%. Depends 3% to 5%. 5% type था. around 30-35 crore? तो but B2B business में मतलब one thing which I realized, मतलब couple of things I learned. One is on the customer side. So B2B agent is very, very protective of his customer. And he wants to make sure that his customer is given best of the service. So there were a number of times you will get a call at 6 a.m. in the morning. मेरे customer को problem आ रही है. And that is something you will have to address immediately. So ये B2B business जब आप travel agent के लिए बना रहे थे तो you must be traveling across India or it was from Delhi only? नहीं, I traveled kind of a thing. I went to places and कई सारी interesting चीज़ें देखी. Like for example, मुझे कभी नहीं समझ आता था कि डिस्ट्रीब्यूटर बिजनेस की क्या जरूरत है. मतलब आप जाओ एटीएम में, ब्रांच में जाओ, पैसे जमा कर दो एंड ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ. आई वेंट टू शिलोंग. शिलोंग में देयर यूज्ड टू बी ओनली 2 ATMs at that point of time. The whole city, it is a capital city. That whole state at that point of time had probably 3 ATMs. And for the first time in my life, I saw a queue like this in front of ATM. And मुझे ये भी पता है कि इनमें से आधे लोगों को पैसा नहीं मिलेगा क्योंकि एटीएम में उतना ही पैसा हो सकता है. और ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है. आई ऑल्सो कम फ्रॉम स्मॉल सिटी और गांव में भी काफ़ी रहा हूँ. तो मेनी पीपल हैव इंटरेस्ट इन चेकिंग देयर बैलेंस. सो दे आर स्टैंडिंग इन द क्यू एंड दे आर नॉट गोइंग टू विड्रॉ मनी. दे हैव टू check the balance. Similarly, many people used to go to physical branch because they have to update the पासबुक अपडेट करना है. That is a big issue. पासबुक अपडेट. I don't know why it was must to have ritual. I guess. नहीं, it was more around trust. See, India was introduced to digital payments only at that point of time. How do I actually know that इतना पैसा है मेरे अकाउंट में? और frauds वगैरह enough होते थे तो मतलब people needed that kind of a confidence kind of a thing. So how long was the stint with the Make My Trip? 3 years था, 4 years था roughly. And incidentally, my next stint Paytm was born out of my Make My Trip stint. How? तो यार होता क्या था कि अब इंटरनेट में आप B2C कस्टमर हो, आपने फ्लाइट टिकट बुक करी, दिल्ली पटना आपने बुक करी 4,000 रुपए की, आपका पेमेंट डेबिट हो गया. अब उसके बाद आपको नहीं पता है कि वो पेमेंट सक्सेस है कि फेलियर है. एंड अगले 2 घंटे में वो प्राइस अगर फ्लाइट टिकट का 4 से 5,000 हो गया नुकसान, तो बियर कौन करेगा? क्या मेक माई ट्रिप करेगी? क्या आप करोगे? दूसरी बड़ी प्रॉब्लम क्या होती थी, अब उस टाइम लोगों के क्रेडिट कार्ड में लिमिट है 50,000 की. आपने 30,000 रुपए की एक इंटरनेशनल फ्लाइट बुक करी, पैसा कट गया, कंफर्मेशन नहीं आया बैंक से. अब आपकी लिमिट बची है 20,000. दूसरी टिकट भी नहीं बुक कर सकते आप. मतलब रिफंड तो छोड़ो. एंड दैट टाइम रिफंड यूज्ड टू कम इन 21 days. तो मतलब हाँ, और वो आपको पता नहीं है कब आएगा. कितने पेमेंट फेलियर होते होंगे उस टाइम? 60% पेमेंट सक्सेस होती थी. 40% फेलियर अक्रॉस बैंक्स, किसी भी बैंक से. हाँ, किसी भी बैंक से. So it must be a very hectic task for Make My Trip to deal with super problematic because flight prices change. देखो बाकी सब जगह क्या है कि कस्टमर गाली देता होगा of course, भर भर के. और B2B में तो अगर ऐसा कुछ हो जाए तो क्लाइंट भी खराब हो जाता है. बिल्कुल. तो B2B में मैंने क्या सॉल्व किया, B2B में मैंने क्लाइंट एजेंट्स को बोला आप मेरे यहाँ कैश रखो, एडवांस डिपॉजिट. Okay. So they will transfer money from their bank account to Make My Trip bank account and then the payments will happen through there. Okay. So it कुछ seamless हुआ होगा. बहुत ज़्यादा seamless. मतलब फेलियर भी हुआ तो दूसरी बात. तो आप पैसा बैंक में आ गया ना, मतलब क्योंकि मेरे कंट्रोल में. You are dealing, you have a control on the money. तो this was the genesis of building Paytm wallet. Okay. पैसा अगर मेरे पास होगा तो कंप्लेंट नहीं आएगी. तो ये मतलब Paytm wallet तो उस वक्त आप Paytm में थे नहीं, तो Paytm में कैसे ज्वाइन करना? मैं बताता हूँ. तो हुआ क्या कि ये समझ आया कि मेरी लाइफ में और 10 बसड़ होगी मेक माई ट्रिप में, पर पेमेंट नहीं थी. और B2C में जो प्रोडक्ट में बिजनेस हेड था मेरा काउंटर पार्ट, उसकी लाइफ की सबसे बड़ी बसड़ी पेमेंट.
तो आपको समझ में आ गया कि पेमेंट इज अ बिग चैलेंज एंड इट नीड्स टू बी सॉल्व। हाँ, ये समझ आ गया। एंड आपको लगा कि कुछ पेमेंट्स में आप करोगे वहाँ पर? नहीं, तो उस टाइम ये नहीं सोचा था। उस टाइम मेक माई ट्रिप का IPO देखा, मतलब शेयर वेंट अप लाइक क्रेजी काइंड ऑफ थिंग। फर्स्ट डे इटसेल्फ शेयर $40 का। 9 में IPO गई थी? 2012 में गई थी। तो आप B2B का लीड कर रहे थे MMT का बिजनेस, तो आपके पास उस टाइम ESOP वगैरह थे या पैसे बनाए फिर? कुछ पैसे बने उसमें। तो आई एम वेरी मैंने ग्रेटफुल सुना करोड़ों बने, तो कुछ तो नहीं बने। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू दीप। 3 डिजिट में नहीं बने होंगे, 2 डिजिट में ही बने होंगे। नहीं, सिंगल डिजिट। सिंगल डिजिट? मतलब भाई बहुत बड़ा नंबर होता था। मतलब हम बता रहे हैं कि सर ने 5-7 करोड़ उसी वक्त बना लिए। नहीं बनाए भाई, उतने भी नहीं बनाए। चलो 2-3 तो बनाओगे, इससे नीचे क्या होगा सिंगल डिजिट। बट मैं आप ये सोचो ना कि जिस बंदे की सैलरी 15 लाख है, वो उसको 2 अगर वो उसको 1 करोड़ भी बनता है हम्म, तो उसकी 6 साल की सैलरी बन रही है एक साल। बिल्कुल सही। तो वो बहुत बड़ी बात थी। एंड दूसरा सो यू मेड मनी। हाँ, आई थिंक मनी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो माइंडसेट बनना कि यार यू हैव टू बेट ऑन द बिजनेस। तो आपको लगा क्या जब आप मतलब IPO में ESOP के थ्रू कुछ पैसे बनाए, तो आपको लगा कि एंटरप्रेन्योरशिप आगे चल के करना है, चाहे यहाँ पे कुछ ज़्यादा पैसे बन सकते हैं? नहीं, एंटरप्रेन्योरशिप नहीं लगा, बट मोर ऑफ वो लगा कि आगे आप जो भी बेट लोगे आप साथ में स्टॉक ऑप्शन रखना चाहोगे। ओके ओके, क्योंकि स्टॉक का ऑप्शन, स्टॉक में वैल्यू देखना उस टाइम वाज अ बिग थिंग। बिकॉज मैं अभी भी आपको बताऊंगा, वी टॉक टू मेनी फाउंडर्स, वी टॉक टू थाउजेंड ऑफ एम्प्लॉयज ओवर द लास्ट 10-15 ईयर्स। मैंने ये देखा है कि वैल्यू ऑफ ESOP आज भी लोग कम करते हैं। इसका रीज़न है, जब अच्छी कंपनी में है जिनकी लगता है कि फ्यूचर है, बट अ कंपनी विच इज़ इन अर्ली स्टेज, यू आर एम्प्लॉय नंबर 5, एम्प्लॉय नंबर 10-20, उस वक्त बोलते हैं कि भाई मेरे को ESOP ना दो चलेगा, मेरी सैलरी नेगोशिएट मत करो। तो एक्चुअली मेरा थॉट प्रोसेस इस मामले में डिफरेंट है। मेरे को तो लगता है कि अगर आप अर्ली स्टेज ज्वाइन कर रहे हो तो इसीलिए तो ज्वाइन फार मोर ESOP बेंट होना चाहिए, क्योंकि जो लेट स्टेज है, मतलब आप ये देखो ना कि लेट स्टेज है उसमें तो फिर स्टॉक ग्रो ही नहीं होना है। अब तो फिर तो कैश ही ले लो। फिर जो $5 बिलियन की कंपनी है वो मैक्सिमम 7 बिलियन की होगी, तो उसमें ज़्यादा पैसा नहीं मैं बनेगा। आपको ये बताता हूँ, मेक माई ट्रिप का स्टॉक 2012 में $40 था, एज ऑफ यस्टरडे $65 है। तो 12-13 साल में तो कहीं ज्यादा ग्रो नहीं हुआ। इवन इफ यू लुक एट पेटीएम जर्नी आल्सो सेम, मतलब लाइक 2016 में जो स्टॉक प्राइस था वो आज सिमिलर रेंज में है टाइप्स। तो अब B2C बिजनेस अपनी तो इसलिए मतलब आई विल ऑलवेज से क्लियरली, if you are joining an early stage company, you should say, but obviously it also means that you are taking more risk. But या फिर early stage join ही मत करो ना, फिर आप मेच्योर कंपनी ज्वाइन करो। बट अर्ली स्टेज ज्वाइन कर रहे हो आप और फिर ये रिस्क नहीं ले रहे हो तो कोई फायदा नहीं। तो फिर फायदा नहीं। सो दिस इज सॉर्ट ऑफ एडवाइस टू यंग जनता जो कि अभी कॉर्पोरेट लाइफ में, मतलब प्रोफेशनल लाइफ में आती है। इफ यू आर ज्वाइनिंग अ अर्ली स्टेज कंपनी, ऑलवेज वे ग्रेटर। हाँ, मतलब आप जा क्यों रहे हो अर्ली स्टेज? अर्ली स्टेज 2 रीजन की वजह से जाता है आदमी। पहला तो होता है लर्निंग की वजह से कि मेरा लर्निंग ग्राफ एक्सेलरेट होता है, एंड दूसरा होता है कि भाई जिसमें मेरा कुछ फाइनेंशियल अपसाइड बनता है। मतलब एंड सच्चाई एक्चुअली ये भी है कि 100 में से 90 स्टार्टअप फेल होती है। बिल्कुल ठीक बात है। तो हो सकता है आपका ये सबका कुछ पैसा ना बने, एंड 100 में से 90 केस में नहीं बनेगा। आपको विजन भी देखना पर जिस केस में वो 10 बनेगा वो बड़ा बनेगा। बिल्कुल। तो अगर आपको उस 10 का कॉन्फिडेंस नहीं है तो फिर आप लेट स्टेज में ही जाओ, फिर अर्ली स्टेज में मत जाओ। और मतलब इसमें मतलब बहुत चीजें होती है, मतलब बनेगा नहीं बनेगा, रिस्क हमेशा होता है। 3-4 साल 5 साल की जर्नी है, कुछ समझ बाद में आता है। पर इट इज मेक माई ट्रिप आपने यू लेफ्ट? मैंने 2012 में छोड़ा। ओके, मेक माई ट्रिप। तो रीजन क्या था छोड़ने का? आप कंपनी अच्छा कर रही थी, IPO पे चला गया, पैसे ही बन गए। तो यार उस टाइम ये था कि मेरे को बोला गया कि अब आप एक दूसरा बिजनेस देखो। कौन सा बिजनेस? इंटरनेशनल फ्लाइट्स वगैरह देखो। एंड बिकॉज B2B बिजनेस वाज डूइंग वेल एटसेट्रा, एंड दैट इज अ पॉइंट ऑफ टाइम आई स्टार्टेड थिंकिंग कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सो इफ यू हैव टू डिफाइन मेक माई ट्रिप, एक सेंटेंस में कैसे डिफाइन करोगे? यार बहुत ही अमेजिंग स्टोरी है। मतलब ट्रीट्स टीम्स वेरी वेल, वेरी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ मार्केट एटसेट्रा। मतलब इट्स अ अमेजिंग कंपनी टू स्टार्ट योर करियर विद। ओके, एंड द सेम थिंग फॉर दीप कालरा। तो मतलब दीप गेव मी अ लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। दीप मतलब लाइक हर टाइम, मतलब हर 6 महीने में मैं एक बार दीप के कंधे पे जाके रोता था, सर मेरे को तो ये नहीं हो रहा, मेरे को तो वो नहीं हो रहा है। इंसिडेंटली एक बड़ी चीज़ इंटरेस्टिंग है कि मैंने दीप को बोला कि दीप मैं 3-4 साल बाद अपना करना चाहूँगा, या जब ज्वाइन किया था तो मैंने बाद में कभी पूछा दीप से कि सर मैं जब आपको बोलता था कि मैं 3-4 साल बाद अपना करना चाहूँगा तो आपको ये नहीं होता था कि ये बंदा तो छोड़ देगा?
तो मेरे को इसको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो दीप ने कहा पागल तू तो मेरे को 3-4 साल की गारंटी दे रहा था। एक लाइन जो दीप सर को आप बोलना चाहोगे, हम उनको भेज भी देंगे। नहीं, दीप has been an amazing mentor for me from beginning of my career. I think I've been always able to reach out to him whenever I have required guidance, etc. etc. तो मतलब everybody should look at saying कि can they figure out somebody of that level in earlier in their career itself. So he was a kind of godfather for you. हाँ जी। Okay. Same thing for Rajesh Magao. तो राजेश वॉज अ स्ट्रिक्ट टास्क मास्टर। Okay. राजेश की पर्सनैलिटी थोड़ी सी अलग थी। ही वॉज अ स्ट्रिक्ट टास्क मास्टर, but and that time he was the CFO of the company. Okay. He gradually transitioned into the CEO role, but he showed like वो number पे grip. Deep was still a big picture guy. Rajesh was a very number driven guy. Kind of a thing. Okay. So discussions, debates, etc. The good thing about Make My Trip was most senior folks were ready to listen. आप डिस्कस कर रहे हो, मतलब आई डिड नॉट कम फ्रॉम ट्रेवल डोमेन। मुझे तो क्या ट्रैवल आता था, मैंने तो मेरी लाइफ की शायद पहली फ्लाइट भी मेक माई ट्रिप ज्वाइन करने के बाद ली। तो वैसा वाला सीन है। Sachin Bhatia was there. सचिन भाटिया वाज द मार्केटिंग गाय। So what the same thing for him. One मतलब sentence. हाँ, so Sachin brought a lot of innovativeness in the marketing. Okay. मतलब वो इनिशियल सेट पे वो ब्रांड बनाना ट्रैवल में, और स्पेशली व्हेन पीपल वर नॉट बाइंग ऑनलाइन, वो सचिन का काम था। So sir, you got married in 2010, Make My Trip days. So backstory, शादी के पीछे क्या कहानी थी? And why arranged marriage? Most important thing. Was some pressure from the family? हाँ, थोड़ा सा प्रेशर था ही फैमिली से कि भाई अगर प्रेशर नहीं होता तो you would have gone for love marriage? बहुत हार्ड टू है, मतलब लाइक बेसिकली लव मैरिज के लिए फिर आपका 1-1.5 साल 2 साल बॉन्डिंग बनाने के लिए। बॉन्डिंग वगैरह होता है। उस टाइम वो सब कुछ नहीं था, तो क्लैरिटी था कि अरेंज मैरिज ही करना। हाँ। और कहीं ना कहीं उस टाइम वो सब कुछ होता है, ये मतलब 2007 की बात है, तो उस टाइम लव मैरिजेस वर वेरी फ्यू काइंड ऑफ अ थिंग, अरेंज वाज फार हायर ओवरऑल परसेंटेज। सर आपकी फैमिली में इंटरकास्ट का भी थोड़ा प्रॉब्लम था या नॉर्मल लाइक गुड टू गो है? एक्चुअली उस टाइम तो सब कुछ था, आज ओपन हो गया है, पर उस टाइम तो वो सब कुछ था, वो बड़ा क्लियर कि यार यही करना है एंड सो एंड सो फोर्थ। और मतलब वो अगर आप पसंद करके जाते कहते घर वालों को कि ये पसंद है, तो मुझे नहीं लगता कि घर वाले ऑब्जेक्ट करते। पर मोटा मोटा माइंडसेट वही था कि कहीं ना कहीं घर वालों के दिमाग में था कि सेम कास्ट हो तो बेटर है। तो कुछ बैक स्टोरी कैसे मिले, क्या हुआ? नहीं, बहुत सारे ऑप्शंस देखे? हाँ, मतलब उस टाइम ऑब्वियसली काफ़ी सारे ऑप्शंस देखे थे, मतलब बायोडाटा बनता था, बायोडाटा आता था, देखते थे, आप जाके मिलते थे एंड सो फोर्थ, और हमेशा कंफ्यूज ही हो जाते थे। तो कोई ना कोई रीज़न की वजह से कुछ ना कुछ आपको लगता था ये सही है, ये गलत है एंड सो फोर्थ। तो वैसा वाला सीन था। काफ़ी सारे लोगों को तो ये भी नहीं समझ आता था कि मैं करता क्या हूँ। मतलब आज प्रोडक्ट मैनेजर लोगों को लगता है बहुत सेक्सी जॉब है, उस टाइम ये होता था प्रोडक्ट मैनेजर होता क्या है। कितना टफ था कन्विंस करने में कि आप क्या करते हो, मतलब लोगों को बहुत अंडरस्टैंड। सो आपके लाइक फॉर एग्जांपल मैं फादर इन लॉ का बताऊं तो वो लिटरली उन्होंने मेरे को बोला कि यार हमारे गांव यहाँ भिलवाड़ा में सामने दुकान की एक ट्रैवल एजेंट बैठता है, उसको फ़ोन करते हैं, वो ट्रेन टिकट दे जाता है। आप क्या करते हो? मतलब मेक माई ट्रिप भी तो ट्रैवल एजेंसी है, उनके दिमाग में ये था। तो आप वो टिकट बनाते हो, आप करते क्या हो? और टिकट बनाते हो तो फिर उसके लिए IME जाने की क्या जरूरत थी? हमारे वो तो बिना IME के ही कर लेता है टिकट। तो वो समझाना बड़ा मुश्किल था। उन्होंने तो इनफैक्ट ऑफिस में लोग भी भेजे चेक करने के लिए। अच्छा, क्या देखा उन्होंने? जो लोग आए थे चेक करने, क्या देखा कि है क्या ये? अच्छा, उनको नहीं समझ आया कि एक, तो उनको भी नहीं समझ में आया होगा, वो आए होंगे बस देखने के लिए। बट उनको बस ये देख के लगा कि बहुत सारे लोग बैठे हैं ऑफिस में। अच्छा, 3 फ्लोर की बिल्डिंग है, बहुत सारे लोग हैं, अच्छा ऑफिस है, अच्छा ऑफिस है, वैसा वाला सीन है कि हाँ भाई 500-700 लोग काम करते हैं। तो वो चीज़ था। आपकी शादी कैसी, ग्रैंड हुई थी या क्लोज्ड? नहीं, मारवाड़ी में शादी तो प्रॉपर ही होती है फिर। तो वो मतलब वो तो सबको बुलाना होता है, मतलब आपने ना शादियों में जाके खाया होता है तो आपको भी खिलाना होता है। एक छोटी सी बात होती है ना, जैसे अब जैसे आपकी अरेंज मैरिज हुई तो काफ़ी सारे ऑप्शंस भी आपने एक्सप्लोर करे होंगे, फिर आपको पसंद आई होगी कि भाई कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स की मेरे को इसी लड़की यही पसंद आ रही है और मेरे को इनसे शादी करनी है। हाँ, तो आपको बेसिक क्राइटेरिया थे कुछ कि भाई पढ़ी लिखी चाहिए, बात कर सके, घर में फिट हो सके, घर का कल्चर समझ सके, ब्रॉडर क्राइटेरियाज थे। तो उनका क्या बैकग्राउंड है? मतलब वाइफ इज अ CA एंड CS है वो। अरे वाह, तो वैसा वाला सीन। अच्छा सर, मरवाड़ियों में दहेज भी काफ़ी होता है, तो आपने भी कुछ लिया होगा पक्का?
अरे यार धोखा हो गया। मुझे भी लगा था कि पापा ने बात कर ली होगी, अच्छा। पर शादी से 1 महीना पहले पता चला कि कुछ भी नहीं हुआ। तो मैंने पापा से पूछा कि, तो पापा कहते भाई तेरे को पढ़ा तो दिया, तू कमा ना। इसका कोई रिग्रेट तो नहीं है? और उसके बाद पापा ने एक और लाइन बोली, तो पापा ने बोला मैंने अपनी शादी में भी कुछ नहीं लिया था। तो मैंने मजाक में बोला पापा पर आपको तो कोई देता भी नहीं ना दहेज। लेकिन ये काफी, इट वाज अ ग्रैंड कॉल दैट योर पेरेंट, स्पेशली योर डैड, उन्होंने मना किया कि मतलब दहेज नहीं लेना, बिकॉज मैं देखता हूँ आज भी इवन पीपल हु आर एट टॉप ऑफ द लैडर they also go for dowry, so it was a good thing. इनफैक्ट मैं मेक माई ट्रिप में शादी के बाद आया तो मेरे पास उस टाइम घर पे जेन थी, मारुति जेन। तो मैं जेन में ही आता था। तो काफी लोगों ने मेरे को कई बार बोला कि भाई नई गाड़ी कब तक छिपा के रखेगा। कि उनको लगा कि दहेज में से तो मैंने कहा नई गाड़ी कौन सी है भाई? कहते शादी में नई गाड़ी तो आई होगी ना, कब तक उसको नहीं रखेगा? भाई गाड़ी यही है, गाड़ी दूसरी नहीं है। Okay. तो हार्ड था मतलब वो, बट वो ठीक है, मतलब लाइक देयर इज नो रिग्रेट ऑन दैट। मतलब फाइनली तो आप कैपेबल हो। फाइनली व्हाट यू बेट ऑन इज कि भाई आपको फैमिली पार्टनर, जो लाइफ पार्टनर है वो अच्छा मिलना चाहिए। श्योर। तो शादी हुई तो मेक माई ट्रिप ने आपको पैकेज वैकेज कुछ गिफ्ट किया था क्या, हनीमून वगैरह? नहीं, तो मेक माई ट्रिप का बस ये, उस टाइम मेक माई ट्रिप इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ से बड़ा ब्रांड नहीं था, डोमेस्टिक ही था प्राइमरली। बट ये है कि मेक माई तो डोमेस्टिक गए थे आप कि इंटरनेशनल गए थे? तो बाली गए थे, बाली गया था। तो मैंने आप बाली 2010 में गए हो? अरे वाह, क्या बात है। वो मेरी भी पहली इंटरनेशनल ट्रिप टाइप्स में से थी। मतलब उससे पहले तो शायद नेपाल और श्रीलंका गए थे मेक माई ट्रिप की तरफ से एनुअल प्लानिंग में, बट उस टाइम बाली गए थे। ओके। एक्चुअली उस टाइम ये बाली वगैरह बहुत एक्सपेंसिव नहीं थे, फ्लाइट सस्ती थी, होटल सस्ते थे, तो वैसा वाला सीन था। क्योंकि आप तो हमेशा से फ्रूगल हो, तो वहाँ भी फ्रूगलिटी देखा हो।